Good morning, everyone. This is Saraswati Devi welcoming you all to the science class. So, today we are going to do our chapter 7, that is weather, climate, and adaptation of animals to climate. So, in this chapter, we'll be learning about weather, what is climate, and how the animals adapt themselves to the different climatic conditions, different climates. So, let us see what are the topics we'll be covering in today's class. So, today we'll be learning about weather. We learn what is a weather. We learn what are the elements of the weather, humidity, rain gauge, and climate. So here we will learn what is the difference between weather and climate. We are often confused with the terms weather and climate. We consider them as synonyms, but weather and climate are the two different things, and today we will learn about weather and climate. So, let's begin our class. So, the word weather, this word is not new to us. We are familiar with this word. We see the weather reports in the newspapers, in the televisions. So, this weather plays very important role in our life. It is very important for us. Why? Because most of our activities, our day-to-day activities are based on weather conditions. So, we see the weather report and to know about the weather of the upcoming day so that we can plan our activities as per the weather. You must have heard in your family when they plan out important functions, especially the outdoor functions, what they do discuss? They choose a suitable weather in which they can do that function. The most common example of weather is we check the possibility of rainfall. Why do we check the possibility of rainfall? We check the possibility of rainfall on a particular day so that we can carry an umbrella with us according to the weather prediction. Now, like when you plan your vacation, when you plan to go to a new place, what do you see? You check the weather of that place. How is the weather of that place? How is the climate of that place, so that you can take the things accordingly. As per the weather, you can take the things that will be needed in that particular place at that particular weather. Okay. So let us now have a look what weather is. So we can define weather of a place as the measure of its daily atmospheric condition. Now the important thing here is daily. The weather is the daily atmospheric condition. Okay, so the weather of a place is actually the daily atmospheric condition of that place. So, what we see in this atmospheric condition? We see in these atmospheric conditions, the things which we see are the things which we measure, or we can say the things we see in the weather in the atmosphere of that particular location at that particular time are known as elements. So, those will be called as the elements of weather. So, what we see in the atmospheric conditions in a weather are, first is rainfall, second temperature. We know what is rainfall. Rainfall is also known as precipitation. Okay. Now next is temperature. What is temperature? The measure of the hotness is known as temperature. Next is humidity. What is humidity? Humidity is moisture present in the atmosphere. Snowfall, storms, winds, these are the some of the elements of weather. These are the certain things which we see in the atmospheric conditions of a place at a particular time. So what are the elements of weather? किन किन चीज़ों से, किन एलिमेंट से वेदर डिसाइड होता है? वेदर रिपोर्ट में हम क्या क्या देखते हैं? तो वेदर रिपोर्ट में स्पेशली मेंशन होता है रेनफॉल का, उस पर्टिकुलर प्लेस की एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कितना है, स्नोफॉल, स्टॉर्म्स, विंड स्पीड कितनी है उस प्लेस में,
सो एक प्लेस का एक पर्टिकुलर टाइम में जो भी एटमॉस्फेरिक कंडीशन होता है वो उस प्लेस का वेदर होता है। अभी एटमॉस्फेरिक कंडीशन में क्या क्या आते हैं, रेनफॉल आता है, टेम्परेचर आता है, ह्यूमिडिटी आता है, स्नोफॉल आता है, स्टॉर्म्स हैं, विंड्स हैं, ये सब हैं एलिमेंट्स ऑफ वेदर। Okay, now how do we get the information about this weather? We get the information about this weather in the form of a report, and that report is known as weather report. Now what this weather report contains? This weather report has the information about the elements of weather. Those are temperature, humidity, rainfall of a place. Okay, so, who prepares this report? Like a medical report is prepared by doctors, then who prepared the weather reports? So, like this, similarly, the weather report is prepared by a special department of government, and that department is known as meteorological department. What it is called? It is known as meteorological department. Now, this meteorological department, it predicts the weather of a place by studying the atmospheric condition of that place, and it prepares a report as per their study of that place's atmospheric condition. So it is the meteorological department which presents the weather report of a place. So what where this weather report where is published, where from where you get the information about the weather? You get the information about the weather in the form of report which is known as weather report, and these reports are easily available or these are published in न्यूज़पेपर. आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा वेदर रिपोर्ट का एक पूरा क्लिपिंग होता है. रेडियोस में भी वेदर रिपोर्ट प्रेडिक्ट की जाती हैं, टेलीविजन्स में भी आते हैं. इवन यू कैन नाउ सी द वेदर रिपोर्ट इन योर मोबाइल फोन्स ऑल्सो. नाउ let us have a look at the picture of the weather report. Now this is the weather report of the Balaghat, Madhya Pradesh. ये वेनसडे का वेदर रिपोर्ट है. तो हम देखते हैं वेदर रिपोर्ट में यहाँ पर किन किन चीज़ों का मेंशन किया है. सो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले है ये टेम्परेचर. नाउ दिस टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट. सो द टेम्परेचर ऑफ बालाघाट ऑन वेनसडे वॉज 32 डिग्री Celsius. Okay. Now the next thing which is present here is precipitation. Now what is this precipitation? As I said, precipitation is nothing but rainfall. So the precipitation was about 30%. So precipitation कितना था उस दिन? 30% था. Next is humidity, मतलब कि moisture कितना था? तो percentage of moisture in the atmosphere was about 81%. Okay. And the next is the wind. विंड स्पीड कितना है उस दिन वेनसडे को, कितना स्पीड था? इट वॉज अबाउट 5 किलोमीटर पर आवर. सो आपने यहाँ पर नोटिस किया होगा ये जो टेम्परेचर है वो डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है. प्रेसिपिटेशन एंड ह्यूमिडिटी परसेंटेज में होते हैं, एंड स्पीड ऑफ द विंड इज इन किलोमीटर पर आवर. नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज, यहाँ पर दो टेम्परेचर आपको दिख रहे हैं, राइट? सो अभी आप सोच रहे होंगे इन दोनों में से कौन सा सही है. दोनों ही टेम्परेचर सही हैं. एक वेदर रिपोर्ट में दो टेम्परेचर का मेंशन होता है, एक होता है मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ दैट डे एंड दूसरा होता है मिनिमम टेम्परेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर डे. ओके. सो मोस्टली मैक्सिमम टेम्परेचर जो होता है हमें आफ्टरनून में फील होता है. मैक्सिमम टेम्परेचर जो है किसी भी दिन का आफ्टरनून में होता है, और मिनिमम टेम्परेचर जो होता है वो अर्ली मॉर्निंग में एंड इवनिंग टाइम में होता है. सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द वेदर रिपोर्ट. नाउ इस वेदर रिपोर्ट में कुछ सिंबल्स भी होते हैं, लाइक द सिंबल्स ऑफ क्लाउड्स बताता है कि इट विल बी क्लाउडी ऑन दैट डे. यहाँ पर थोड़ा सा रेन दिख रहा है, चांसेस ऑफ रेन वॉज 30%. सो यहाँ पर लिटिल रेन विल मे ऑकर ऑन दैट पर्टिकुलर डे. ओके. एंड यहाँ पर आप देखेंगे फ्राइडे वाले में, हियर इज़ द पिक्चर ऑफ थंडरस्टॉर्म. सो द चांसेस ऑफ रेन विथ थंडरस्टॉर्म्स इज़ देयर ऑन फ्राइडे. एंड अगर वहाँ पर सिर्फ सन बना है देन इट विल बी अ सनी डे. ओके. सो दीज आर द सिम्बल्स एंड दीज आर द temperature, precipitation, humidity, wind speed, these are all mentioned in a weather report. So this is one of the example of weather report. Okay, this is how the weather report of a place looks like. And this weather report
वेदर ऑफ अ प्लेस डज नॉट रिमेन सेम ऑल द टाइम। ओके, जैसे आप देख रहे होंगे क्या यहाँ पर मंडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे सबका टेम्परेचर सेम है? नहीं। आप देखेंगे वेनसडे में 32 डिग्री है, थर्सडे में 33 डिग्री है, फ्राइडे में 32 डिग्री है, सैटरडे में 31 डिग्री है, एंड मिनिमम टेम्परेचर में भी डिफरेंस देखने को मिल रहा है 24 डिग्री, 25 डिग्री, 25 डिग्री, 24 डिग्री, 24 डिग्री। इट मीन्स दैट वेदर जो है कभी भी एक प्लेस का जो है कांस्टेंट नहीं, सेम नहीं रहता है, वेदर ऑलवेज चेंजेस, वेदर हमेशा चेंज रहता है। ओके, टेम्परेचर में भी चेंज हो जाता है, प्रेसिपिटेशन के में भी चेंजेस हो जाते हैं, ह्यूमिडिटी में भी चेंज हो जाता है, विंड स्पीड में भी। नाउ बारिश हमेशा तो नहीं होती, सो दिस प्रेसिपिटेशन जो है हमेशा वेदर रिपोर्ट में मेंशन हो ये ज़रूरी नहीं है। ओके, सो वेदर डज नॉट रिमेन सेम ऑलवेज, वेदर जो है कभी भी चेंज हो जाता है, वेदर हमेशा सेम नहीं रहता है। ओके, नाउ द वेदर रिपोर्ट ऑफ अ प्लेस ऑलवेज इंक्लूड्स द मिनिमम एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द प्लेस ऑफ द डे। ओके, नाउ अभी हमने देखा कि वेदर रिपोर्ट में दो टेम्परेचर मेंशन थे, एक था मिनिमम टेम्परेचर और एक मैक्सिमम टेम्परेचर। नाउ ये मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर कैसे मेजर होता है? So to measure this minimum and maximum temperature of a day, a device is used and that device is thermometer. Temperature को measure करने का device क्या है? Thermometer. हमने heat chapter में पढ़ा था temperature, to measure the temperature of body, the thermometer used is clinical thermometer, or next type of thermometer was laboratory thermometer. Then we learnt about minimum and maximum thermometer, which is helpful in the forecasting of weather reports, weather forecasting में use होता है। Okay, so this minimum and maximum temperature it is measured by using minimum and maximum thermometer। Okay, सो एक वेदर रिपोर्ट में जो हम मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर दिखाते हैं उसको मेजर करने के लिए मिनिमम और मैक्सिमम थर्मामीटर का यूज़ होता है। द मिनिमम टेम्परेचर कैन बी एक्सपीरियंस्ड इन द मॉर्निंग टाइम वाइल द मैक्सिमम टेम्परेचर इज़ एक्सपीरियंस्ड इन द आफ्टरनून। स्टूडेंट्स आपने देखा होगा, आपको फील हुआ होगा आफ्टरनून में गर्मी ज़्यादा होती है व्हेन कंपेयर्ड टू मॉर्निंग एंड इवनिंग। ओके, नाउ लेट अस नो how this minimum and maximum thermometer looks like and how it measures the minimum and maximum temperature of the day. So हमने क्लिनिकल थर्मोमीटर, लेबोरेटरी थर्मोमीटर, डिजिटल थर्मोमीटर इनका कैसे यूज़ होता है ये हमने पढ़ा था अपने हीट चैप्टर में, बट हमने मिनिमम और मैक्सिमम थर्मोमीटर का बस ये जाना था कि ये वेदर रिपोर्ट, वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज़ होता है। ओके, अब ये कैसे यूज़ होता है मिनिमम एंड मैक्सिमम थर्मामीटर के लिए हम वो देख लेते हैं। आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट्स, ये जो थर्मामीटर है क्लिनिकल लेबोरेटरी थर्मामीटर से अलग है। इट इज़ ऑफ यू शेप। इसका शेप कैसा है? इसका शेप यू शेप है। ओके, और इसमें दो साइड से आप देख सकते हैं, दोनों साइड में रीडिंग दिया है, एक लेफ्ट बल्ब है एक राइट बल्ब वाला बल्ब आप देख रहे हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। यहाँ पर नीचे से ऊपर की तरफ टेम्परेचर जो है कम हो रहा है, यहाँ पर नीचे से ऊपर की तरफ टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो रहा है। ओके, सो रीडिंग्स जो है दोनों साइड में अलग अलग ऑर्डर में है। लाइक यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर जो है कम हो रहा है, यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है। ओके, एंड यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर एक मेटल इंडाइसिस प्रेजेंट है। ये मेटल इंडाइसिस जो है यहाँ पर एक एक्चुअली मेटल पीस प्रेजेंट होता है। ओके, नाउ इसका जो लोअर एंड है आप देख रहे हैं, लोअर एंड जहाँ पर होगा लेफ्ट साइड, लेफ्ट बल्ब में जो मेटल इंडाइसिस है उसका जो लोअर बल्ब जहाँ पर होगा वो उस टाइम का, उस डे का मिनिमम टेम्परेचर बताएगा। कौन सा टेम्परेचर बताएगा? मिनिमम टेम्परेचर। सो ये 25 से जस्ट थोड़ा ऊपर है, राइट। सो यहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर कितना हो गया? 24 डिग्री सेल्सियस। ओके, सिमिलरली आप यहाँ पर देखेंगे तो ये राइट साइड में, राइट बल्ब में जो मेटल इंडाइसिस है उसका जो लोअर एंड है वो एग्जैक्टली 30 पे है, तो उस पर्टिकुलर डे का मैक्सिमम टेम्परेचर क्या हो गया? 30 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया हमारा मिनिमम एंड मैक्सिमम थर्मोमीटर।
जो कि बाकी थर्मामीटर से अलग है। ये एक दिन के मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ होता है। यहाँ पर एक ही थर्मामीटर में आपको दो टेम्परेचर दिख रहे हैं, एक मिनिमम एक मैक्सिमम। ओके, लेफ्ट साइड में आपको मिनिमम दिख रहा है और राइट साइड में आपको मैक्सिमम टेम्परेचर दिख रहा है। सो आई होप इट इज़ क्लियर हाउ वी गेट the minimum and how we measure the minimum and maximum thermometer of the day using minimum and maximum temperature of the day using minimum and maximum thermometer. Okay, now the next thing here is rainfall. What is the other term used for rainfall? Precipitation. Okay, so how this rain formation or rainfall takes place? So we have learned in class 6 about water cycle. What is water cycle? So in water cycle, what you have learned? Due to the heat of the sun, the surface water of the water bodies gets evaporated and evaporated means it gets converted into in the form of vapors. Now what happens? These vapors rises up and they reaches at the high level in the atmosphere. Okay, now there what happens? Due to the low temperature, these vapors again condenses into water droplets. They can get condenses into tiny water droplets and results in the formation of clouds. And when these droplets, due to very low temperature, when these droplets become these droplets become heavy, they fall on the earth in the form of rain. Okay, they fall on the earth in the form of rain. So this is how the rainfall takes place. Okay, now like we used a device to measure the temperature, minimum and maximum temperature, there is one instrument to measure the rainfall. So how you know how much it has rained at a particular place? For that there must be some instrument to measure it, right? हमने newspapers में देखा है, TV reports में देखा है, it has rained about 1 inch at that place, it has rained about 5 inches at that place. So ये कैसे पता चलता है, कैसे measure करते हैं? सो इसको मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम है रेन गॉज. सो रेन गॉज इज़ द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर द रेनफॉल ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस. किसी भी जगह में कितना रेनफॉल हुआ है उसको मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम है रेन गॉज. ओके, नाउ व्हाट दिस रेन गॉज डज? It actually collects the rainwater of origin and has the measuring scale inside in it which determines the quantity of rainfall of that place. मतलब रेन गॉज जो है रेन वाटर को कलेक्ट करता है. रेन गॉज में मेजरिंग स्केल होती है जिससे पता चल जाता है कि उस पर्टिकुलर प्लेस में कितनी रेनफॉल हुई है. ओके ओके, सो टू अंडरस्टैंड दिस लेट अस हैव अ लुक एट द रेन गॉज. दिस इज़ हाउ द रेन गॉज लुक्स. सो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पर 3 चीज़ें हैं. फर्स्टली दिस इज़ द फनल. ओके, ये क्या है? ये हो गया हमारा फनल. सेकेंड, आप इसमें देख रहे होंगे एक स्मॉल सिलेंडर है. दिस इज़ द स्मॉल सिलेंडर. इसको क्या बोलते हैं? मेजरिंग सिलेंडर. इसमें कुछ मेजरिंग स्केल्स हैं तो इसमें रीडिंग्स हैं, एक्चुअली मेजरिंग स्केल है तो इसे हम कहेंगे मेजरिंग सिलेंडर. दिस इज़ एक्चुअली द मेजरिंग ट्यूब. नाउ आपको एक बड़ा सा भी सिलेंडर दिख रहा होगा. दिस आउटर वन, दिस इज़ द बिगर सिलेंडर. ओके, सो बेसिकली रेन गॉज में 3 चीज़ें होती हैं. पहला एक बड़ा सिलेंडर, उसके अंदर एक सिलेंडर, छोटा सिलेंडर जिसमें रीडिंग्स हैं, जिसमें स्केल्स बनी हुई है. ओके, और उसके ऊपर टॉप पे क्या होता है? फनल होता है. अभी जो पानी जो है, रेन वाटर जो है वो फनल के थ्रू किस में जाएगा? मेजरिंग सिलेंडर में जाता है. तो यहाँ पर क्या दिख रहा है? 1. यहाँ पर स्केल की रीडिंग कहाँ पर है? 1 पे, 1.0. दैट मीन्स कितना वाटर कलेक्ट हुआ है? 10 इंचेस वाटर कलेक्ट हुआ है. तो उस पर्टिकुलर प्लेस में 10 इंचेस रेनफॉल हुई है. ओके, तो अभी इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर इससे ज़्यादा रेनफॉल हुई, लाइक ये मेजरिंग सिलेंडर में 2 है, तो इससे ज़्यादा अगर रेनफॉल हुई तो कैसे पता चलेगा?
उसके लिए हमारे पास ये बिगर सिलेंडर है, बिगर सिलेंडर के अंदर ही तो ये छोटा सिलेंडर है ना, तो जब ये फनल के थ्रू वाटर मेजरिंग सिलेंडर में जाता है, उसके बाद अगर ये फुल हो जाएगा तो वो वाटर ओवरफ्लो होके किस में गिरेगा, ये बिगर सिलेंडर में गिरेगा, उसी के अंदर गिरेगा ना। तब कैसे पता चलेगा, तो जब हमारा ये पूरा 2 इंचेस 20 इंचेस तक हमने मेजर कर लिया, पहले हम इसको बाहर निकाल लेंगे, 20 इंचेस तक ये भरा हुआ है, तो हमारी जो रीडिंग्स हमने लिख ली है कि अभी तक 20 इंचेस की रेनफॉल हुई है, और बाकी जो पानी इसमें गिरा था ओवरफ्लो होके, इस सिलेंडर से होके इसमें आया था, उसको हम फिर से इस सिलेंडर में डाल के मेजर कर लेंगे। सपोज़ वो 1.0 तक हो गया तो 10 इंचेस, तो टोटल रेनफॉल कितनी हो गई, 30 इंचेस हो गई। ओके, इफ़ सपोज़ दोनों बार में 2.0 तक हो चुका, फिल हो चुका है, अभी भी इस बाहर वाले सिलेंडर में पानी बच गया, तो दोनों बार 2 पॉइंट हो गया, यानी कि 20 प्लस 20 40 इंचेस की रेनफॉल हो चुकी है, प्लस इसमें जितना और पानी है फिर से हम इसमें डाल के मेजर कर लेंगे। तो जैसे कि अब की बार कितना हो गया है, 0.5 हो गया है, तो प्लस 5, तो कितना हो गया, 45 इंचेस वहाँ पर रेनफॉल हो गई है। सो बेसिकली तो यहाँ पर जो बिगर सिलेंडर है उसका यूज़ ये है कि जब ज़्यादा बारिश हो जाती है, जब हमारा मेजरिंग सिलेंडर फुल हो जाएगा, तो उसमें से पानी निकल के बिगर सिलेंडर में जाएगा, जिसको हम बाद में इसमें डाल के मेजर कर सकते हैं, जिससे हम टोटल करके पता कर सकते हैं कितना रेनफॉल हुआ है उस पर्टिकुलर प्लेस में। ओके, सो दिस इज़ हाउ रेन गॉज इज़ यूज टू मेजर द रेनफॉल ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस। Now next is humidity. So students, humidity क्या होता है? Humidity is actually the amount of it is actually the measure of the moisture. एयर में कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है उसे कहते हैं ह्यूमिडिटी। मॉइस्चर दैट इज वाटर वेपर्स, वाटर वेपर्स ये टाइनी ड्रॉपलेट्स होते हैं जो हमें अपनी आंखों से नहीं दिखते हैं, ये एयर में प्रेजेंट होते हैं, इसे कहते हैं ह्यूमिडिटी। सो मॉइस्चर इन द एयर इज सेड एज इज एक्चुअली कॉल्ड एज ह्यूमिडिटी। नाउ ये जो वार्म एयर होती है, जो गर्म हवा होती है, वो मॉइस्चर को बहुत ज़्यादा, वाटर वेपर्स को बहुत ज़्यादा होल्ड करती है व्हेन कंपेयर टू द कोल्ड एयर। ओके, एंड ये जो ह्यूमिडिटी होती है इज़ मोर वी फील एयर इज़, जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो हमें एयर जो है वेट फील होती है, हमें एयर व्हेन द ह्यूमिडिटी इज़ मोर वी फील दैट द एयर इज़ वेट। व्हेन यू फील वेट एयर मोस्टली हमें कब फील होता है, जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। स्पेशली रेनफॉल के बाद जो होता है, बारिश के बाद जो होते हैं, देयर इज़ लॉट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर। रेनफॉल के बाद जो है मॉइस्चर एयर में बहुत ज़्यादा होता है। ओके, सो दिस इज़ ह्यूमिडिटी। इन सिंपल टर्म्स हम क्या बोलेंगे, ह्यूमिडिटी इज़ एक्चुअली द मॉइस्चर विच इज़ प्रेजेंट इन द air. Okay, moisture, water vapors, the tiny droplets which are not visible with the naked eyes. So what is the device which is used to measure this humidity? The device used to measure humidity is known as hygrometer. What it is called? It is known as hygrometer. So to measure the temperature, the device was maximum and minimum thermometer. To measure the rainfall, the device or instrument used was rain gauge, and to measure the humidity, the device was hygrometer. So this is all the things, elements which were there in a weather report. These are the elements of weather. Now how do changes in weather occur? वेदर चेंज कैसे होता है? वेदर चेंज होता है यानी कि एटमॉस्फेरिक कंडीशन चेंज हुई है इस प्लेस की, एटमॉस्फेरिक कंडीशन चेंज हुई है, मतलब कि एटमॉस्फेयर के जो एलिमेंट्स हैं लाइक रेनफॉल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, इन सब में चेंज आया है। नाउ हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज चेंजेस? सो दीज चेंजेस इन द वेदर टेक्स प्लेस ऑन द अर्थ बिकॉज ऑफ सन। सन क्या करता है? इट रेडिएट्स लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी ऑन अर्थ। सो हमारा हीट एंड लाइट एनर्जी का सोर्स कौन है? सन है। इट इज़ द सन विच इज़ अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी ऑन द अर्थ, एंड ड्यू टू द हीट एंड लाइट ऑफ एनर्जी ऑफ द सन, the atmospheric condition of the earth or of a particular place changes, and due to which the weather of that particular place changes.
सो सन की हीट के वजह से एटमॉस्फेरिक कंडीशन में चेंजेस आते हैं, यानी कि एटमॉस्फेयर में जो एलिमेंट्स हैं लाइक टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, रेनफॉल हो गया, इन सब में चेंजेस आते हैं। अभी एलिमेंट्स में चेंज आए हैं, मतलब कि वेदर जो है वो चेंज हुआ है। सो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजेस ऑफ द वेदर? इट इज़ सन। ओके, नाउ वी कैन से द फॉर्मेशन ऑफ विंड्स, द फिनोमिना ऑफ रेनफॉल, चेंजेस इन सीजन्स ऑल ऑकर बिकॉज ऑफ सन। सो ये सब किसके वजह, ये सब के लिए ये कैसे होते हैं? इट्स ऑल बिकॉज ऑफ सन। सो विंड का फॉर्मेशन भी सन के वजह से होता है, रेनफॉल भी होता है। वाटर साइकिल में हमने देखा था जो सन की हीट होती है जिसके वजह से वाटर जो है इवॉपरेट हो जाता है, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। फिर हाई एल्टीट्यूड में जहाँ लो टेम्परेचर होता है वो कंडेंस हो जाता है एंड देन फॉर्म्स क्लाउड्स एंड फॉल्स ऑन द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल। सिमिलरली फॉर्मेशन ऑफ विंड हम देख लेते हैं। विंड फॉर्मेशन कैसे होता है? हीट की वजह से क्या होती है, जब हवा जब गर्म हो जाती है तो वो लाइट हो जाती है, तो वो ऊपर की तरफ मूव होने लगती है, और जो ऊपर से ठंडी हवा होती है जो लो टेम्परेचर से आ रही होती है वो नीचे आती है। तो इस मूवमेंट की वजह से क्या होता है? विंड फॉर्मेशन होता है। ओके, सो हीट के वजह से एयर गर्म हवा गर्म हो जाती है, वो ऊपर चली जाती है, ठंडी हवा नीचे आती है। सो दिस कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ विंड। सो चेंज इन सीजन, सीजन्स में चेंज क्यों होते हैं? सीजन्स में चेंज के लिए भी सन रिस्पॉन्सिबल है। लाइक हमारा अर्थ क्या कर रहा है? इट रोटेट्स अराउंड द सन, इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, इट रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, राइट। सो उस पार्ट में अर्थ का वो पार्ट जो है सन के पास है, जिसके पास ज़्यादा हीट आ रही है, वो पार्ट में ज़्यादा गर्म होगा, तो वहाँ की एटमॉस्फेरिक कंडीशंस जो है अलग होगी व्हेन कंपेयर टू द अदर पार्ट ऑफ द अर्थ जिसमें कम सन रेजेस आ रही हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट लेट अस हैव अ लुक एट व्हाई डेज आर शॉर्टर इन विंटर सीजन। सो विंटर सीजन में दिन जो हैं वो छोटे क्यों होते हैं? स्टूडेंट्स, आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि इन विंटर द डेज आर शॉर्टर। सो वी नो दैट द अर्थ spins on its axis around the sun. Now, so due to the spinning of the earth, the amount of sunlight a place receives, it will vary. It varies throughout the year as its position with respect to the sun changes. Okay, क्योंकि अर्थ जो है रोटेट करता है अपने ही एक्सिस पे अराउंड द सन, सो उसके वजह से क्या होती है, कितनी सनलाइट आएगी हर एक प्लेस में वो अलग अलग होती है पूरे साल में। सो जिसके वजह से क्या होता है, सीजन्स चेंज होते हैं। दिस ऑल्सो लीड्स टू चेंज इन सीजन्स ऑफ प्लेस, और इसके वजह से क्या होता है, हर एक जगह का जो है सीजन जो है वो अलग होता है। सो इन द समर सीजन द पोजीशन ऑफ द प्लेस इज क्लोजर टू द सन। समर सीजन में अर्थ का जो पार्ट जो सन के क्लोज होता है उसमें ज़्यादा सनलाइट आती है, लॉन्ग टाइम तक आती है। सो इसलिए समर में डेज जो होते हैं वो लॉन्गर होते हैं। लेकिन विंटर सीजन में क्या होता है, वो जो प्लेस होती है वो सन से बहुत दूर होती है और बहुत कम टाइम के लिए उस पर जो है सनलाइट आती है, तो इसके वजह से उसके विंटर्स में जो डेज होते हैं वो शॉर्टर होते हैं। In the summer season the position of the place is closer to the sun and hence it receives sunlight for longer hours. पास होता है, ज़्यादा देर तक वो सनलाइट वहाँ पर आती है, तो समर में डेज बड़े होते हैं। while in the winter season the position of place is farther to the sun, मतलब वो सन से दूर होती है, hence it receives sunlight for shorter hours. so बहुत कम टाइम के लिए वहाँ पर सनलाइट आती है, इसलिए विंटर्स में जो डे होते हैं वो शॉर्ट होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज क्लाइमेट। व्हाट इज क्लाइमेट? अभी हमने देखा वेदर। वेदर इज द एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ अ प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम पे एक प्लेस का जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती हैं उसे हम कहते हैं वेदर। लेकिन क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट जो होता है एक पर्टिकुलर प्लेस में लंबे समय तक जो वेदर रहा है उसका जो एवरेज होता है उससे उस प्लेस का क्लाइमेट पता चलता है। लाइक लेट अस फर्स्ट डिफाइन इट।
The climate of a place can be defined as the prevailing weather conditions of a place for a long period of time. एक लंबे समय तक एक प्लेस में जो वेदर कंडीशंस रही हैं वो वेदर कंडीशंस उस प्लेस का क्लाइमेट होती है, वो वेदर कंडीशंस जो हैं उस प्लेस का क्लाइमेट डिसाइड करती हैं. फॉर एग्जांपल 25 ईयर्स तक एक प्लेस में कैसा वेदर कंडीशन रहा है, उस वेदर कंडीशन से ही उस प्लेस का क्लाइमेट डिसाइड होता है. सो हम कह सकते हैं वेदर एक पर्टिकुलर डे में, एक पर्टिकुलर प्लेस का एक पर्टिकुलर टाइम में जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है वो उसका वेदर होता है. लेकिन क्लाइमेट क्या होता है? ओवरऑल एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ दैट प्लेस बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. एक बहुत लंबे समय तक जो एक पर्टिकुलर प्लेस का वेदर रहा है उसका ओवरऑल जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है वो उस प्लेस का क्लाइमेट होता है. सो क्लाइमेट एक सिंपल वर्ड में वेदर ऑफ पर्टिकुलर प्लेस ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. लंबे समय तक एक प्लेस का जो वेदर रहा है वो हो गया उसका क्लाइमेट. ओके, और एक पर्टिकुलर डे में जो एक पर्टिकुलर प्लेस का एटमॉस्फेरिक कंडीशन है वो उसका वेदर हो जाएगा. एक पर्टिकुलर डे में एक पर्टिकुलर प्लेस का वेदर कंडीशन, एटमॉस्फेरिक कंडीशन उसका वेदर हो जाएगा. और क्लाइमेट क्या है? वेदर ऑफ पर्टिकुलर प्लेस ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. लंबे समय तक उस प्लेस का जो वेदर रहा है वो उसका क्लाइमेट होगा. चलिए हम एग्जाम्पल से एक समझ लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, टेम्परेचर ऑफ राजस्थान इज़ जनरली हाई थ्रू आउट द ईयर. मतलब पूरे साल में जो है राजस्थान का टेम्परेचर हाई ही रहता है और वहाँ पर जो है बारिश जो है बहुत कम होती है. सो हम क्या कह सकते हैं? राजस्थान का क्लाइमेट क्या हो गया? हॉट एंड ड्राई. हॉट क्यों? क्योंकि लंबे समय तक जो है उसका हर दिन का देखेंगे, हर दिन का जो वेदर कंडीशन है वो वेदर देखेंगे तो वेदर डे वाइज होगा, राइट. तो वो हॉट 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 आ रहा है, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा ही आ रहा है. तो ओवरऑल उन्होंने पूरे ईयर का निकाला तो क्या होगा? राजस्थान इज़ जनरली हाई थ्रू आउट द ईयर. तो पूरे साल में भी उसका टेम्परेचर हाई आ रहा है और वहाँ पर रेनफॉल नहीं हो रही है, तो वो हो जाएगा राजस्थान का क्लाइमेट हो जाएगा हॉट एंड ड्राई. ओके, नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द फैक्टर्स विच डिटरमाइंस द क्लाइमेट. हर एक जगह का क्लाइमेट जो है अलग होता है. अब ये क्लाइमेट जो है किन किन फैक्टर्स से पता चलता है? अभी कोई प्लेस जो सी के पास है उसका क्लाइमेट जो है उन जगहों से अलग होगा जो सी से दूर हैं. लाइक कोस्टल एरियाज़ का क्लाइमेट जो है वो हिली एरियाज से अलग होता है, या फिर हम कहें साउथ का जो कोस्टल एरिया है उसका क्लाइमेट जो है नॉर्थ से अलग होता है. क्योंकि कोस्टल एरियाज मतलब वहाँ पर सी के वो बहुत पास होती हैं. हमने हीट चैप्टर में पढ़ा था सी के पास, यानी कि कोस्टल एरियाज में क्या होता है? लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज. अब ये लैंड ब्रीज और सी ब्रीज आपको नॉर्थ में जहाँ पर कोस्टल एरियाज नहीं है वहाँ तो ये होता नहीं है. सो जो क्लाइमेट है वेरीज as per the distance from the sea. Climate of a place varies according to closeness to sea. sea से कितना दूर है, कितना पास है, उस वजह से भी क्लाइमेट जो है एक प्लेस का अलग हो सकता है. नेक्स्ट इज एल्टीट्यूड और हाइट. अब अबो सी लेवल क्लाइमेट ऑल्सो वेरीज अकॉर्डिंग टू एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड मतलब कि हाइट. हाइट के हिसाब से भी क्लाइमेट जो है अलग होता है. जैसे कि हिमालय हो गया, ये बहुत हाई पे है, हायर एल्टीट्यूड पे है, तो वो बहुत कूल है व्हेन कंपेयर टू अदर प्लेस. सो क्लाइमेट जो है एल्टीट्यूड के हिसाब से भी वेरी करता है. नेक्स्ट इज ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी ऑल्सो डिटरमाइंस द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस. जैसे कि केरला और कोलकाता हो गए, यहाँ पर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन राजस्थान और हरियाणा देखें तो वहाँ पर ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है. ह्यूमिडिटी क्या होता है बच्चों? मॉइस्चर. सो केरला एंड कोलकाता में जो है मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है एंड राजस्थान एंड हरियाणा में बहुत कम होता है. सो जो अलग अलग प्लेस का जो क्लाइमेट है वो अलग होता है, और वो फैक्टर्स क्या है रिस्पॉन्सिबल उनके अलग होने का? वो है वो सी से कितना दूर है, कितना पास है, वो कितनी हाइट पे है सी लेवल से, और वहाँ पर कितनी ह्यूमिडिटी है. इन सब से
एक प्लेस का क्लाइमेट पता चलता है। नेक्स्ट इज क्लाइमेट इन इंडिया। तो हम इंडिया में कुछ प्लेसेस देख लेते हैं जिनका क्लाइमेट हम देख लेते हैं कैसा है। लाइक द क्लाइमेट ऑफ इंडिया वेरीज इन डिफरेंट रीजन का डिफरेंट क्लाइमेट है। क्यों? क्योंकि कुछ रीजन सी के पास में है, कुछ हाई एल्टीट्यूड पे हैं, कुछ जगहों पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो अलग अलग रीजन में अलग अलग क्लाइमेट है। Now, the northern region of Himalaya has cold and moderately wet climate. Northern region हिमालयाज़ की, ये हाई एल्टीट्यूड पे होता है, तो ये कोल्ड है और मॉडरेटली वेट क्लाइमेट, क्योंकि वहाँ पर बारिश भी होती है। तो इसका एग्जांपल क्या है? कश्मीर। नेक्स्ट इज प्लेन्स हैव मॉडरेटली हॉट एंड वेट क्लाइमेट। जो प्लेन्स का एग्जांपल है, जैसे कि उत्तर प्रदेश जैसे प्लेसेस में यहाँ पर गर्मी भी होती है और यहाँ बारिश भी होती है, तो यहाँ का क्लाइमेट कैसा हो जाएगा? हॉट एंड वेट। नेक्स्ट इज साउथ हैज़ हॉट एंड वेट क्लाइमेट। केरला का ही एग्जाम्पल देख लेते हैं। कोस्टल एरिया के पास है, यहाँ पर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, गर्मी भी बहुत होती है और बारिश भी बहुत होती है। मतलब यहाँ गर्मी भी होती है, बारिश भी होती है, तो यहाँ का क्लाइमेट हो जाएगा हॉट एंड वेट क्लाइमेट। लेकिन वेस्टर्न रीजन्स को अगर हम देखें, जैसे कि राजस्थान, इसका क्लाइमेट कैसा होगा? हॉट एंड ड्राई। नाउ हॉट एंड ड्राई क्यों होगा? क्योंकि वहाँ पर थ्रू आउट द ईयर टेम्परेचर हाई रहता है, वहाँ गर्मी होती है, और ड्राई इसलिए क्योंकि वहाँ बारिश बहुत कम होती है। ओके, सो द क्लाइमेट ऑफ वेस्टर्न रीजन लाइक राजस्थान इज हॉट एंड ड्राई। नाउ नेक्स्ट इज द नॉर्थन ईस्टर्न इंडिया हैज़ वेट क्लाइमेट। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जैसे कि आसाम, यहाँ पर जो है क्लाइमेट जो है वेट होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेन होती है। दिस रिसीव्स रेन फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ द ईयर। पूरे साल में बहुत टाइम तक तो वहाँ बारिश ही होती रहती है। सो दीज आर द सम ऑफ द रीजन्स ऑफ आवर इंडिया। दिस इज़ एक्चुअली द क्लाइमेट इन इंडिया। कुछ हमने यहाँ पर डिफरेंट रीजन्स देखे और उनका क्लाइमेट देखा, तो अलग अलग रीजन का क्लाइमेट जो है अलग है। जैसे कश्मीर का कोल्ड एंड वेट है, प्लेन्स एरिया का हॉट एंड वेट है, साउथ का केरला जैसे देख रहे हैं हॉट एंड वेट है। वेस्टर्न रीजन्स का देखें तो यहाँ पर हॉट एंड ड्राई है, जैसे कि राजस्थान। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया हो गया तो इसका है वेट क्लाइमेट। ओके, so this is climate in India. Thank you students for watching.